ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ خبروں، تجزیوں اور تبصروں پر مشتمل پروگرام آج کا احوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر آپ کی میزبان شانزے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کے لیے دعا کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ 21 فروری 2024 بدھ کے دن یہ پروگرام ریڈیو وائس آف سندھ لندن کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے کے رہنما پیر صدر الدین شاہ مبینہ دھاندلی کے خلاف سپریم جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ مورو میں جی ڈی اے کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہم قیمتی ووٹ کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر سب پیپلز پارٹی کے 15 سال سے ملازم ہیں، ملازم یا تو مالک سے سچا ہوتا ہے یا پھر پیسے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے اور ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی انکوائری سپریم جوڈیشل کمیشن کرے۔ پیر صدر الدین شاہ نے کہا کہ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والے منظر سے ہی غائب ہو گئے ہیں۔ حق تلفی ہو تو بڑی کا کام ہے، لیکن چھڑی اٹھائے پیر پگارا صاحب کے حوالے سے جی ڈی اے چھوڑنے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ پیر صاحب پگارا چوری مینڈیٹ واپس دلوانے تک ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے واضح موقف اپنایا کہ ہم کسی کو وائسرائے بنا کر حکمرانی نہیں کرنے دیں گے۔ 23 تاریخ کو تمام جماعتیں کراچی میں میٹنگ کے بعد آگے کا پلان بنائیں گی۔ ہماری اتحادی جماعتیں عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف یکجہاں ہیں۔ 10 نکاتی منشور عوام کے خوابوں کا غبارہ تھا جو پھوٹ گیا ہے۔ رہنما گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے ایاز لطیف علیجو نے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کی عزت کرتے ہیں مگر زرداری ٹولے کو نہیں مانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 دن پہلے آپ حیدرآباد میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے اور آج 72 گھنٹے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں دوبارہ جمع ہو گئے ہیں۔ یہ فیصلہ سازوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ صرف یہاں موجود عوام کا نہیں بلکہ ہماری نسلوں کا ہے۔ ہم ناانصافیوں کی وجہ سے یہاں موجود ہیں۔ سندھ کی ماں، بہنیں، بیٹیاں انصاف کے لیے در بدر بھٹک رہی ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم سادہ لوگ ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں۔ مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے ایاز پلیجو نے کہا کہ آپ نے اسکرپٹ بنایا ہے، یہاں اچانک سے کچھ نہیں ہو رہا۔ سندھ کو سزا دینے کی پالیسی بنائی گئی، سندھ کے بڑے شہروں کو دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آصف زرداری کے گنڈوں نے سازش کے تحت تعلیم، صحت اور تمام اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ انہوں نے شرکاء سے سوال کیا کہ ایک شخص نے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ اس پر شرکاء نے یکزباں ہو کر زرداری کا نام لیا۔ ایاز پلیجو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سندھ میں سینکڑوں صنعتیں ختم کر دی گئی ہیں۔ صنعتیں اس لیے ختم کی گئی ہیں تاکہ لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہوں اور پھر زرداری انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئیں اور ان کے 5-6 ہزار کے عوض پولیس ہماری ماؤں بہنوں پر لاٹھی چارج کرے، انگوٹھے لگوانے والی ہماری ماؤں بہنوں کے ہاتھ پکڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی سندھ کا پانی چراتا ہے تو یہ صرف خط لکھتے ہیں اور انور مجید پر ادارے ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ سڑکیں بلاک کرتے ہیں۔ یہ لانگ فرمز کی خدمات حاصل کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ ایاز پلیجو نے مزید بتایا کہ آج انہوں نے پبلک سروس کمیشن کا پیپر آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے اربوں روپے پیپر آؤٹ کر کے کما لیے اور سندھ کے نوجوانوں کی امیدیں ختم کر دی، ان کا مستقبل فروخت کر دیا۔ انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ زرداری نے زراعت آبپاشی کو بھی تباہ کر دیا ہے، اب ان سے حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، یہ ان کی عارضی فتح ہے، اب ہم ان کو بتائیں گے، ان کو شکست فاش کر دیں گے۔ سیکریٹری جنرل جی ڈی اے ڈاکٹر صفدر علی عباسی نے مورو دھرنے کی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے 26 فروری کو بدین میں دھرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 23 فروری کو جی ڈی اے کا اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا راشد محمود سمرو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
3 रोज कबल जामशरू में लाखों का इज्तिमा था और भी आज लाखों का मजमा है। ये मोरो में अवामी रेफरेंडम है। अवाम ने फ्रॉड इलेक्शन के खिलाफ फैसला दे दिया है। इस अवाम का फैसला है कि 8 फरवरी को हमने तीर को तोड़ा था और सितारे और किताब को मैंडेट दिया था। उन्होंने पीपुल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए बताया कि कल ठट्ठा में बिलावल जरदारी फतह का जश्न मना रहे थे। 18 मिनट की तकरीर में 9 मिनट पीर साहब पगारा और मेरे बारे में बात थी। आपका गला अभी से खुश्क हो गया, पानी पी रहे हो, अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई है। बिलावल जरदारी अपनी तकरीर में सब जवाब दे रहे थे। आपको पता उस वक्त लगेगा जब हम सिंध असेंबली का घेराव करेंगे। सिंधु इंडस लॉयर्स फॉर्म की तरफ से कराची में हिदायत लोहार के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजी धरने में सिंध सुजागी फॉर्म के मरकजी रहनुमा सारंग जोयो और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि जवाबदारों को फौरी तौर पर मैट्रिक, इंटर बोर्ड और MD-CAT के बाद अब कमीशन जैसे अहम इम्तिहान के भी पर्चे आउट होना शुरू हो गए। कराची समेत सिंध भर में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के होने वाले मेरिट टेस्ट पर्चे आउट होने के सबब मुलतवी कर दी गए, जिस पर तलबा ने एहतजाज किया, जबकि असातिज़ा ने किसी भी खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक 27 और 28 फरवरी वाले पर्चे मामूल के मुताबिक होंगे, जबकि मुलतवी होने वाले पर्चे अप्रैल में होंगे। तफसीलात के मुताबिक कराची में जामिया NAD और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का महकमा तालीम की BPS 16 सेकेंडरी स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए मेरिट टेस्ट मुनक्कद किया गया, जो पर्चा आउट होने के सबब दौरान इम्तिहान ही मुलतवी कर दिया गया। इंतजामी अमले ने इम्तिहान मुलतवी करने का फैसला करने के बाद कमरा इम्तिहान में उम्मीदवारों से पर्चे वापस लेना शुरू किए तो उम्मीदवार मुश्तल हुए और उन्होंने पर्चे फाड़कर कुर्सियां फेंकी, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। उम्मीदवारों की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि टेस्ट के वक्त से कबल पर्चा आउट हुआ है। जब इम्तिहान शुरू हुआ तो ये वही पर्चा था जो पहले से सामने आया। ये सब करके मेरिट के सिस्टम को तबाह किया जा रहा है। सिंध में तालीमी निज़ाम ख़राब होता जा रहा है, जो कि तशवीशनाक है। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान इंतज़ामिया और उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई भी हुई, जबकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अमले ने मौके से निकलने में ही आफियत जानी। कॉलेज के असातिज़ा ने कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की हिदायत के मुताबिक जामे के ग्राउंड में मेरिट टेस्ट मुनक्कद किया गया था। हमने पर्चे वापस ले लिए, जिसके बाद उम्मीदवारों ने हमला करना शुरू किया। मरकजी सदर सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन मुनव्वर अब्बास ने एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। पर्चे लेने के बाद बद इंतज़ामी उरूज पर पहुंच गई। कॉलेज की ख़वातीन असातिज़ा के साथ बदसलूकी की गई। असातिज़ा के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। अगर इस तरह बदनज़मी होती रही तो हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले टेस्ट नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी तक होने वाले टेस्ट के लिए सिक्योरिटी फराहम न की गई तो हम SPSC के टेस्ट से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। इस मामले पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने बयान जारी कर दिया है और इम्तिहान मुलतवी होने की तस्दीक करते हुए कहा कि 27 और 28 फरवरी के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नाज़िम इम्तिहानात अब्दुल हफीज़ ने एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि 26 फरवरी तक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के पर्चे मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि 27 और 28 फरवरी के असिस्टेंट और हेड मास्टर्स के पर्चे मामूल के मुताबिक होंगे। उनका कहना था कि टेस्ट पेपर लीक होने की इत्तला मिली, जिस पर चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इम्तिहान में शफाफियत रखने के लिए 26 फरवरी तक पर्चे मुलतवी कर दिए गए हैं। मुलतवी किए जाने वाले टेस्ट पेपर अप्रैल में होंगे। टेस्ट मुलतवी करने पर उम्मीदवारों की जानिब से जारी एहतजाज अब ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से 16 ग्रेड की असामी के लिए टेस्ट देने वाले उम्मीदवार ने एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि अगर पर्चा आउट हो गया था तो पहले से आगाह कर देना चाहिए था। हज़ारों रुपए का किराया करके कराची टेस्ट देने आए थे, अब वापस जा रहे थे। नई तारीख का भी ऐलान ताहाल नहीं किया गया है। दोबारा टेस्ट देने के लिए आना पड़ेगा। मेरिट ख़राब होता जा रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कराची के तर्जुमान ने एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि इस मेरिट टेस्ट का इनेकाद सिंध भर में किया गया था। कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में भी पर्चे मनसूख किए गए।
अवामी तहरीक के मरकजी सदर लाल जरवार, मरकजी जनरल सेक्रेटरी नूर अहमद कातियार, मरकजी रहनुमा अब्दुल कादिर रांटो और एडवोकेट आसिफ कसो ने अपने मुश्तरका प्रेस बयान में कहा कि सेकेंडरी स्कूल टीचर का पेपर फरोख्त करना सिंध की तालीम पर ख़तरनाक हमला है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिंध के लाखों अहल नौजवानों के मुस्तकबिल का मजाक उड़ाया है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नौकरियां बेचने का बाजार बन चुका है। सूबाई निगरान हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के मफादात के लिए काम कर रही है। निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की करप्शन इंडस्ट्री के मुहाफिज बन चुकी है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के इदारों को मंडी में तब्दील कर दिया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में नाअहल और करप्ट लोगों को भर्ती करके ज़हीन और अहल तलबा की जिंदगियां दाव पर लगा दी हैं। रहनुमाओं ने कहा कि एक तरफ सिंध के वसाइल और ज़मीनें नीलाम की जा रही हैं तो दूसरी तरफ सिंध के तालीम को सदियों पीछे धकेला जा रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन से लेकर अहम ओहदों पर नाअहल और करप्ट अफराद को भर्ती किया गया। करप्ट और राशि अफसरान ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बदतरीन इदारे में तब्दील कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि सिंध हाई कोर्ट सेकेंडरी स्कूल टीचर के पेपर की फरोख्त का नोटिस लें। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर लाखों बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में रिश्वत के बदले भर्तियों की आला सतही जुडिशल गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कराची में मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर एक सेमिनार मुनक़द किया जाएगा, जिसमें प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल पठान, डायरेक्टर कॉलेजेस कराची रीजन खुसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। इस सेमिनार में मादरी ज़बान में तालीम की ज़रूरत पर रोशनी डाली जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। माशाल्लाह एक इनफरादी फैसला है, उसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। भुट्टो फांसी केस में साबिक चीफ जस्टिस ने गलती का एतराफ़ किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल अदालती उज़्मा का 9 रुकनी लॉर्जर बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अगर मैं जानिबदार हूं तो ये मेरे सिवा कोई नहीं जान सकता है और ना साबित कर सकता है। मुमकिन है कि भुट्टो केस में जानिबदारी के अलावा कोई नई कैटेगरी निकालनी पड़े। अगर कल को कोई जज उठकर कहे कि मैंने दबाव में फैसला किया तो क्या होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं अभी भी आर्टिकल 186 का दरवाज़ा खुलने के सवाल पर हूँ। 3 बुनियादी सवालात के जवाब दें। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के फैसले में क्या नाइंसाफ़ी हुई? भुट्टो केस में नाइंसाफ़ी हुई तो इसके सबूत कैसे मिलेंगे? नाइंसाफ़ी के सबूत मिल जाएं तो क्या ये अदालत आर्टिकल 186 के तहत इंक्वायरी करा सकती है? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसे देखें। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्तफ़ा होने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई हक नहीं बनता वो ओहदे पर रहें। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। पीटीआई कौमी असेंबली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस निशिस्तें देगा। उन्होंने मजीद कहा कि वही हुकूमत चलती है जो अवामी मैंडेट लेकर आए। हम मुतालबा करते हैं साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात आयद कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने एतराज़ात दूर करने के लिए अपीलें वापस ले ली। वकला के मुताबिक एतराज़ात दूर करके आज ही दोबारा अपीलें वापस दायर कर देंगे। पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते अपीलें दायर की गई थी।
अपीलों पर रिकॉर्ड मुकम्मल न होने और कापियां मध्यम होने पर एतराज़ात आयद किए गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के इजलास में बैरून ममालिक में 23,454 पाकिस्तानी शहरियों की कैद होने का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन वलीद इकबाल की ज़ेर सदारत सेनेट के कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के इजलास में वज़ारत ख़ारजा ने बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात पेश कर दी, जिसके मुताबिक 23,454 पाकिस्तानी बैरून मुल्क कैद हैं। चेयरमैन कमेटी ने वज़ारत ख़ारजा के एदाद शुमार कमेटी को पढ़कर सुनाए। चेयरमैन कमेटी के मुताबिक सऊदी अरब में 12,154, कतर में 338, UAE में 5,292, इराक में 519 पाकिस्तानी बाशिंदे कैद हैं। वज़ारत ख़ारजा हुकाम की कमेटी को ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया कि बहरीन में कैद पाकिस्तानियों की तादाद 450, बरतानिया में 330, अमेरिका में 44, तुर्की में 308, मलेशिया में 255 पाकिस्तानी जेलों में हैं। इसी तरह इटली में 330, ईरान में 100, कुवैत में 59, भारत में 706, यूनान में 811, चीन में 400 और अफगानिस्तान में 88 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। वज़ारत ख़ारजा हुक्काम ने बताया कि बैरून ममालिक में कैद पाकिस्तानियों में से 15,587 सज़ा याफ्ता और 7,869 अंडर ट्रायल हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की सेनेट ने वोटिंग की बुनियाद पर सिंध से वाइस चांसलर के उम्मीदवार को इस दौड़ से बाहर कर दिया है और जिन 3 नामों को वाइस चांसलर के मौजू नामों के तौर पर सदर मुमलिकत चांसलर यूनिवर्सिटी डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले किया गया है, उनमें से सिफ़े अव्वल पर डॉक्टर बख्त जहां, दूसरे पर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह और तीसरे पर डॉक्टर ज़ाब्ता खान शुमारी शामिल हैं। इस बात का फैसला ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत मुनअक़िदा यूनिवर्सिटी सेनेट के इजलास में किया गया। इजलास में पेश किए गए 5 नामों में से इब्तदाई 2 नामों डॉक्टर बख्त जहां और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह पर सेनेट के तमाम ही अराकीन ने इत्तफ़ाक़ किया, ताहम बाज़ अराकीन ने तीसरे नाम डॉक्टर ज़ाब्ता खान की जगह डॉक्टर अतहर महबूब का नाम पेश किया, जिस पर काफ़ी बहस के बाद वोटिंग का फैसला किया गया और वोटिंग के नतीजे की सूरत में सिंध से शामिल वाहिद उम्मीदवार डॉक्टर अतहर महबूब 6 के मुकाबले में 8 वोट से फहरिस्त निकाल दिया गया और डॉक्टर ज़ाब्ता खान को शामिल रखा गया और इस वोटिंग में सदर मुमलिकत ने हिस्सा नहीं लिया। अदालती हुक्म के बावजूद शहरियार आफरीदी को MPO के तहत गिरफ्तार करने के खिलाफ दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर तलबी के बावजूद पेश न हुए, जिस पर हाई कोर्ट ने उनके वारंट गिरफ्तार जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी के खिलाफ MPO जारी करने के इख्तियार से तजावुज़ के केस में अदालती हुक्म अदवली पर DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। SSP ऑपरेशंस मलक जमील जफ़र और SP फारूक बटर अदालत के सामने पेश हुए। साथ ही प्रोसिक्यूटर कैसर इमाम भी अदालत में मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट ने धांधली इल्ज़ामात के तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील के लिए इलेक्शन कमीशन को जजेस की खिदमत देने से इनकार कर दिया। मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से 9 जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम मांगे गए थे, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की कमी, ज़ेर अल्तवा केसेस में इजाफे के बायस इलेक्शन कमीशन को 9 जजेस की खिदमत देने से साफ इनकार कर दिया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 भिटाइयाबाद में बच्चों की लड़ाई पर होने वाले झगड़े में फायरिंग से UC चेयरमैन जाँ बहक हो गया। मकतूल साबिर मक्सी गुलिस्तान जौहर UC 9 का मुंतखब चेयरमैन था। वाक़े में 6 अफराद ज़ख्मी भी हुए। साबिर मक्सी 2 बच्चों का बाप और प्रॉपर्टी का कारोबार करता था, जबकि उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, जिसे गर्दन में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल के अहले खाना तदवीन के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक झगड़े में फायरिंग से UC चेयरमैन जाँ बहक और 6 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़िले कश्मीर की नशिस्त के लिए मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाए जाने के लिए वोट मुस्तरद करने का इंकशाफ हुआ है। PP की जीत जाहिर करने के लिए फॉर्म 47 NA 191 के 2 पोलिंग स्टेशन का नतीजा न आने के बावजूद जारी कर दिया गया। दिलचस्प तौर पर दीगर सूबाई हलकों में भी मुस्तरद वोटों की तादाद जीतने वाले उम्मीदवार के वोटों के फ़र्क से ज़्यादा थी। सक्खर से PS 22 के उम्मीदवार जाम इकराम सिर्फ 2050 वोटों के फ़र्क से कामयाब हो गए, जबकि 5000
417 वोट मुस्तरद हुए थे। इसी तरह PS 41 सांगड़, PS 28 खैरपुर, PS 34 और PS 18 के अलावा PS 91 में भी यही सूरत हाल रही। PP के अली हसन PS 41 सांगड़ से 1632 वोटों से कामयाब हुए, जबकि मुस्तरद वोटों की तादाद 7544 रही। PS 28 खैरपुर से PP उम्मीदवार 4378 वोटों से जीत गया, जबकि 3425 वोट मुस्तरद कर दिए गए। PS 34 के उम्मीदवार मुमताज़ चांडियो को 5943 ज़्यादा वोट मिले, जो कामयाब करार दिए गए, जबकि मुस्तरद वोटों की तादाद 5473 रही। आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर को 1922 वोटों से PS 18 में कामयाब करार दिया गया, जबकि हल्के की मुस्तरद वोटों की तादाद 7411 थी। GDA के गुलाम दस्तगीर को 3422 वोटों से कामयाब करार दिया गया, जबकि हल्के में मुस्तरद वोट 3787 थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने पर असूली इत्तफाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत का 5वां दौर हुआ। इस्लामाबाद में दोनों जमायतों की राब्ता कमेटियों का इजलास साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की रिहाइशगाह पर हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ और आइंदा की हिकमत अमली ज़ेर गौर आई। ज़रा ने बताया कि आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने पर असूली इत्तफाक कर लिया गया। ज़रा का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर पंजाब का ओहदा मांग लिया, ताहम नून लीग दोनों ओहदे देने को तैयार नहीं, जबकि चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा। ज़रा ने मज़ीद कहा कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को KP में गवर्नरशिप की पेशकश की, जबकि गवर्नर बलूचिस्तान नून लीग से और वज़ीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी से बनाने पर इत्तफाक किया गया। ज़रा के मुताबिक नून लीग ने 6 माह में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा भी मान लिया, जबकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा भी रखा है। ज़रा का कहना था कि पहले मरहले पर पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब में वज़ारतें नहीं लेगी। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि स्वाबी से तहरीक का आगाज़ कर दिया है। स्वाबी में एहतजाजी मुजाहिरे खिताब में अमीर हैदर होती ने कहा कि 8 फरवरी को अगर किसी की ख्वाहिश थी कि हमें पार्लियामेंट से बाहर रखकर कमज़ोर कर लेंगे, ये गलत सोच है। हम पार्लियामेंट से बाहर रहकर और भी मजबूत होंगे। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। आपकी खिदमत में पेश करते हैं आसमा शिराजी का कॉलम, जिसका उन्वान है ये ज़मीर कौन है। ज़मीर भी अजीब चीज़ है, किसी ख़ास सिस्टम के तहत जागता है और इशारा न हो तो सोया रहता है। आला शख्सियात, हुकाम और अफसरान का ज़मीर हालात और औकात मखसूसा के तहत काम करता है। यहाँ ज़मीर ज़ाती जिबलत, इनफरादी मफाद और मुक़्तदर सफ़ात के मातहत है, लिहाजा ये आम हालात में नहीं जागता। हर इंतखाबात के बाद चंद ज़मीर ज़रूर जाग उठते हैं, जो सिस्टम से और सिस्टम उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने के बाद चंद अबदी फ़ायदों की खातिर जाग कर इनकलाब बर्पा कर देते हैं। मसलन सन 2002 के इंतखाबात के बाद एक ज़मीर हरकत में आया और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के अहकामात पर कई ज़मीरों की एक फसल तैयार कर दी, जिसने जनाब जमाली साहब की हुकूमत को महज 1 वोट से तवानाई अता की और यूं पेट्रियाट ग्रुप की सूरत कई ज़मीर जागे। ज़मीर जागने के इस अमल में कभी हाजिर सर्विस तो कभी रिटायर्ड अफसर अपना अहम किरदार अदा करते रहे हैं। सन 2013 के इंतखाबात को इमरान खान ने RO का इलेक्शन करार दिया था। चूंकि तहरीक इंसाफ उन इंतखाबात में हार गई, लिहाजा वो पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात करार पाए और 35 पंक्चर के बयानी के साथ एक और सिस्टम हरकत में आया और 2 मुतवाज़ी ज़मीर एक वक्त में काम करने लगे। सन 2018 में कबल अज और बाद अज इंतखाबात धांधलियाँ RTS बैठ जाने के बावजूद यूं दुरुस्त करार पाई कि उन इंतखाबात में जीतने वाली जमायत तहरीक इंसाफ थी।
जिस तरह 2002 के इंतखाबात में ज़मीर जगा कर हुकूमत बनाई गए, बिल्कुल इसी तरह 2018 के इंतखाबात में एक इलेक्शन कमिश्नर का ज़मीर जागा और बाद में वही ज़मीर पार्लियामेंट के बाहर धरनों में शमूलियत इख्तियार करने लगा। सन 2024 के इंतखाबात में भी मुबैना धांधली के इल्जामात संगीन तरीन हैं। सिफत की तीसरी डिग्री का यहाँ इस्तेमाल करना यूँ ज़रूरी है कि कहीं मुबादा इन इंतखाबात को शफाफ तस्वुर न कर लिया जाए। अभी हाल ही में एक सिविल अफसर का ज़मीर इंतखाबात से 10 दिन बाद जाग उठा है और हालिया इंतखाबात के सेहत को मुतनाज़ा बना रहा है। खैर, ज़मीर किसी भी वक्त जाग सकता है अगर अबदी नींद न सो गया हो, और जगाने के लिए न तो इकबाल की नज़मों की ज़रूरत है और ना ही फैज़ साहिब के इनकलाबी कलाम की। अलबत्ता फैज़याब ज़मीरों की किसी तौर कमी नहीं है। ज़मीर जगाने के लिए मखसूस हालात और अहकामात की ज़रूरत है, कभी सिस्टम बनाने के लिए और कभी सिस्टम गिराने के लिए। ज़मीर जागने के इस मौसम में अचानक सिंध की रियासत पसंद कुव्वतें भी सड़कों पर आ निकली हैं। इंतखाबात के दौरान ताकत के मुजाहरे से एहतराज बरतने वाली कुव्वतें मुत्तहदा ताकत का मुजाहरा करने लगी तो ज़मीर ने फिर सीटी मारी। यूं लगा कि ये ज़मीर सिस्टम को डिरेल करने के लिए मैदान में उतर आया है। दिल को इत्मीनान हुआ कि चले इंतखाबात के बाद ही सही, मगर ये ज़मीर भी जागा तो। हमेशा सिस्टम के साथ लब्बे कहने वाले ज़मीर जब खिलाफ ज़मीर बोलें तो शक ज़रूर होता है कि कहीं कोई ज़मीर है जो मुसलसल हरकत में है। इसी तरह का एक ज़मीर अदम एहतमाद के दौर में चौधरी परवेज़ इलाही की बनी गाला मुलाकात के दौरान एक फ़ोन की सूरत भी जागा था, जिसने चौधरी साहब को आखिरी वक्त में दुरुस्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। आज चौधरी साहब जेल में कैद व बंद की सऊबतें उठा रहे हैं और जगाने वाला ज़मीर कहीं दूर चैन की नींद सो रहा है। सिस्टम में अगर दो ज़मीर एक ही वक्त में काम कर रहे हों तो यूँ समझिए कि एक जिस्म में दो दिल बेक वक्त शरियानों में बहते लहू को अपनी जानिब खींचते हैं। अब ये शरियानों की मर्जी है कि वो हाजिर दिल की बात सुने या गायब की। असल बात यह है कि उसका शिकार जिस्म होता है जो खींचा तानी में मुश्किल से दो चार है। सिस्टम की ये कशमकश खत्म हो तो वतन अजीज सुकून में आए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अगर कभी तजलील की जाए तो सख्त से सख्त जवाब ना सोचो, बेहतरीन जवाब सोचो, क्योंकि इखलाक बहुत कमाल की चीज़ है। साथ सलामत।